Hello students, today we are going to discuss angular acceleration, centripetal acceleration and centripetal force, or you can say uniform circular motion. Okay, so angular acceleration, that is denoted by alpha, and as you know the definition of linear acceleration, the rate of change of linear velocity is known as linear acceleration. Similarly, the rate of change of angular velocity is known as angular acceleration, and we have already studied about that. Theta equals to s upon r. This is the length of arc upon radius, and this is the angular displacement, and omega equals to d theta upon dt. This is the angular ratio of angular displacement to the time taken, and this is the angular velocity, and the relation between angular velocity and linear velocity equals to v equals to omega r. We have already discussed all these things in previous video. So your in continuation, this is the fourth topic of your circular motion, angular acceleration. Angular acceleration, again, the rate of change of angular velocity. So angular velocity is denoted by omega, then we can write alpha equals to delta omega upon delta t. If delta t is very small, or you can say alpha equals to limit delta t tends to 0 and delta omega upon delta t, then we can write d omega upon dt. This is the angular acceleration. And what is the SI unit of angular acceleration? The SI unit of angular acceleration is radian second inverse square. Okay? And this is for angular acceleration. And what is the relation between angular acceleration and linear acceleration? अगर हम relation find out करें angular acceleration और linear acceleration में, what is that? The relation between angular acceleration and omega and linear acceleration. V. Okay, so we know that V equals to होता है we know that linear acceleration A equals to dV upon dt होता है. हमें पता है ना ये बात कि acceleration को क्या लिख सकते हैं dV upon dt, and we know that the V equals to होता है omega r, then A equals to, we can write dV, in place of V क्या लिखोगे omega r upon dt, और r क्या है, कांस्टेंट है, r में कोई चेंज नहीं होता है. इट मीन्स वी कैन राइट a इक्वल्स टू r बाहर और dv d ओमेगा अपॉन dt, और d ओमेगा अपॉन dt को अभी लिखा है हमने अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं d ओमेगा अपॉन dt. तो इसे लिख दीजिए आप, इसके लिए क्या प्लेस कर देंगे वैल्यू, तो यह आ जाएगा हमारे पास a equals to r alpha. This is the relation between linear acceleration and angular acceleration. This is the relation between r alpha, linear acceleration and angular acceleration. कैसे किया हमने? linear acceleration को हम जानते हैं a equals to dv upon dt, मतलब rate of change of velocity with respect to time. Then v equals to omega r, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a equals to d omega r upon dt, r बाहर d omega upon r, d omega upon dt, यहाँ पर omega का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, then we get answer. This is the angular velocity, angular acceleration. Next है time period. What is time period? Means time taken to complete one revolution, that is known as time period. And time period means to time taken to complete one revolution.
और t इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1/f, और t से डिनोट करते हैं और लिख सकते हैं 2π/ओमेगा। ओमेगा ये f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 2π/ओमेगा, राइट। और इसको फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, ओके। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमने सिर्फ सर्कुलर मोशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, the motion of a body moving with constant speed along a circular path is called uniform circular motion। अगर कोई भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, but velocity will be changed, but the magnitude of velocity remains constant, but the direction of the velocity change at the every point of the circumference of the circle, then that is called uniform circular मोशन। देखो यहाँ पर कोई भी अगर बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंज। दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ direction of the velocity, due to the change of the direction of the velocity, the acceleration is called centripetal acceleration. Due to the change, the acceleration due to the change of the direction of the velocity is called acceleration, called centripetal acceleration। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड मींस कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है, v1, सपोज मैग्नीट्यूड v2 इक्वल्स टू v, यानी स्पीड कैसी है आपकी, कांस्टेंट, और मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का कैसा है, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, देन the acceleration due to the change in the direction of velocity, the acceleration is known as centripetal acceleration, okay, and it's always directed towards the center of circle along radius, towards center of circle and along radius। कहाँ होता है, सेंटर की साइड डायरेक्टेड होता है। अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग रेडियस होगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल और अलोंग रेडियस, हमेशा रेडियस के साथ में होगा। एंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी, linear velocity and centripetal acceleration is always 90 degree, they are perpendicular to each other, हमेशा दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ओके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सपोज एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, और कोई भी बॉडी जो है started from here moving along the circumference of circle, and after t time it reaches here, okay, and the angle is suppose d theta, this angle is very small, okay, and the direction of linear velocity here v1, and after t time the direction of velocity is this, and the direction of linear velocity is given by the tangent drawn on the circumference of circle, ठीक है। Then we can, if we draw here, this is v1 suppose, and this is v2, and this is d theta, this is very small angle, and if we join this line to this, and this is delta v, so v1 vector, v2 vector, or delta v vector. By the triangle addition law, what we can write, by the triangle addition law, what we can write, we can write
क्या लिख सकते हैं, v2 वेक्टर इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर बाय एडिशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, क्या लिखोगे आप, डेल्टा v वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अगर हम ट्रांसपोजिंग कर दें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। ट्राइंगल एडिशन लॉ हम जानते हैं कि इफ टू वेक्टर्स presented on the two adjacent side of the triangle, then the third side represents the resultant taken in opposite order। तो ये दोनों तो एक ही ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो we can write v2 vector equals to v1 vector plus delta v vector, okay। And this centripetal acceleration, I have already discussed this acceleration due to the change in the direction of velocity, okay। And देखिए यहाँ पर कि angle between this radius r and velocity 90 degree, the angle between this radius and r is 90 degree। तो जो एंगल है, मैंने यहाँ पर एंगल डी थीटा लिखा, तो कैसे लिख दिया कि देखो द एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही इनकी जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनके बीच में एंगल होता है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स, हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वही एंगल उन दोनों की परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में होता है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर डी थीटा और दिस इज वेरी स्मॉल, ओके। इफ इट इज वेरी स्मॉल ना, देन वी कैन राइट डेल्टा वी वेक्टर को, हम डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, हम डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, यानी मॉड v1 इक्वल्स टू मॉड v2 इक्वल्स टू v। जितना भी वेलोसिटी है यानी कि मॉड मैग्नीट्यूड सेम है, यानी स्पीड उसका कांस्टेंट है, ओके। देन अब एक ट्रायंगल और बना लेते हैं हम, यहाँ पर रेडियस के बीच में बना लें। तो ये रेडियस में ये एंगल है आपका d थीटा और दिस इज r और एंड दिस इज r, और सपोज इसको मान लेते हैं हम ds, स्मॉल डिस्टेंस। अब मैंने, अगर ये एंगल बहुत थीटा है, ये तो वाइड व्यू देख रहे हैं आप, अगर ये एंगल बहुत थीटा है तो लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया, ds। अब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को आप कंपेयर करो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? यस, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ऐसा सोचो कि ये डी थीटा और ये डी थीटा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसमें भी ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, इक्वल है, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी दोनों में इक्वल होगा। इट मींस दीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वी कैन राइट dv, इसे मैंने बोला ना आपको, डेल्टा v को क्या लिख दीजिए आप, dv, इट इज वेरी स्मॉल, तो dv अपॉन v इक्वल्स टू, वी कैन राइट, ये क्या कितना है, v मैग्नीट्यूड में तो v है ना, और इसे क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन r, ओके। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हमने लिख लिया है, ओके। देन व्हाट वी कैन राइट, अब इसे रब कर देते हैं, इसका रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास में, क्या लिखेंगे, dv अपॉन v इक्वल्स टू ds अपॉन r। बोथ साइड आप जो है dt से डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड dt से डिवाइड कर दीजिए। तो dt से डिवाइड करेंगे तो dt, और यहाँ dt से डिवाइड कर दिया तो dv अपॉन dt एंड ds अपॉन dt क्या होता है, देखो dv अपॉन dt इक्वल्स होता है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंड ds अपॉन dt इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी। तो सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू, dv अपॉन dt की जगह रखेंगे a और v है ही यहाँ पर, ds अपॉन dt की जगह क्या प्लेस कर देंगे, v अपॉन r। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ac v को v से मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द सेंट्रीपिटल acceleration, and the direction of this acceleration is always towards center of the circle and along radius, that's why it is called centripetal acceleration। एक टर्म और है हमारे पास में, इसमें और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उसकी फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है
V इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा आर, तो यहाँ पर रख दीजिए ए सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल, ए सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। एक और है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अभी हमने क्या पढ़ा है एक्सेलरेशन। एक और क्या टर्म है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स। कोई भी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है। और फोर्स की डेफिनेशन बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होता है ma। सेंट्रीपिटल फोर्स है इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ लिखा जाएगा, तो m a की जगह क्या रखोगे v स्क्वायर अपॉन r। दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे ही हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसे सेंट्रीपिटल उस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ फोर्स, ओनली कोई भी फोर्स इसका रोल प्ले करने आ जाता है। सपोज हमारी अर्थ जो है सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व होती है और रिवॉल्यूशन करती है, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, तो हु प्रोवाइड्स दैट सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सन को जो सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट्स प्लेज रोल एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कोई फोर्स नहीं है, टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स आएगा और वो जो है इसका रोल प्ले कर लेगा। सो थैंक यू क्लास।